নমস্কার বন্ধুরা, আনন্দপথের নতুন পর্বে আজ আবার আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। যেমন বলেছিলাম সেভাবেই আমি অবশ্যই মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি তিনটে ভিডিও আপনাদের জন্য তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর একটু কাজ সামলে নিতে পারলেই আবার প্রতিদিন ভিডিও প্রকাশ করব। যাই হোক, এর মধ্যে আমি আমাদের সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আপনাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করেছি। আর সেই সঙ্গে তার পরের দিন অনেকেই বলেছিলেন যে ব্যাংকের একটা আইএফএসসি কোড থাকে সেটা জানাতে, সেটাও কিন্তু পরের দিন আবার জানিয়ে দিয়েছি। যারা জানতে পারেননি পরের দিনের আলোচনাটা শুনবেন, সেখানে ওটা দেখানো আছে। যাই হোক, আজকের আলোচনায় চলে আসি। আজকের আলোচনায় শিবরাত্রি সম্পর্কে একটু বলবো, কারণ আপনারা শিব সম্পর্কে অনেকেই জানতে চেয়েছেন। শিবরাত্রি কিভাবে পালন করবেন, কি শিবতত্ত্ব কাকে বলে ইত্যাদি অনেক কথা আপনারা প্রশ্ন করেছেন। আমি সংক্ষেপে, অতি সংক্ষেপে আজ শুধু ভূমিকাটুকু করছি। এই আলোচনাটা কয়েকটা দিন চালাতে হবে আমাদের, সবটা বুঝতে গেলে পরবর্তীকালে সব কথা বুঝিয়ে দেবার একটা চেষ্টা রইল। দেখুন, শিব হচ্ছেন প্রাচীন বৈদিক এক দেব। বেদে একে রুদ্র বলা হয়েছে। কাজেই হাজার হাজার বছর ধরে পূজিত এই শিব সম্পর্কে সমাজের মধ্যে অদ্ভুত সব ধারণা ছড়িয়ে আছে। সে ধারণার কতটা সত্যি, কতটা ঠিক, কতটা ভুল, সেগুলো নিয়েও নিশ্চয়ই আলোচনা করা যেতে পারে, সেগুলো পরের কথা। কিন্তু এই শিবের সঙ্গে শিবতত্ত্ব এবং শিবত্ব নামক দুটো শব্দ জুড়ে গেছে। এত কথা আজকে বলবো না, শুধু এইটুকু বলি, শিবতত্ত্ব বা শিবত্বের একটা মানে বুঝে রাখুন। সেটা হলো যে শিবত্ব মানে সাধনার সর্বোচ্চ ফল। শিবের আরাধনা করেই বা যে কোনো দেবদেবীর আরাধনা করে যখন চৈতন্যের পরম স্তরে আপনি উন্নীত হন, একে বলা হয় শিবত্ব প্রাপ্তি। তাই সেই শিবত্ব প্রাপ্তি সম্পর্কেও আমাদের একটু আলোচনার প্রয়োজন পড়বে। আচ্ছা, এখন দেখুন, সেই উত্তরের হিমালয় হোক, কিংবা রাজস্থানেই যান, কিংবা আসাম ত্রিপুরাতেই যান, কোথায় শিব মন্দির নেই? আসুন নেমে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ হয়ে আরও নিচের দিকে নামতে থাকি, সেই রামেশ্বরম পর্যন্ত কোথায় শিব মন্দির নেই? শিব ভারতের অদ্ভুত এক জনপ্রিয় দেবতা। এই শিবকে আপামর জনসাধারণ পুজো করে এসেছেন যুগ যুগ ধরে। শুধু তাই নয়, পুজো করে এসেছেন এটাই শেষ কথা নয়, তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে মানুষের কাছে এত প্রিয় আর কেউ নেই। তার কারণ আপনি ভারতের যেখানে যাবেন, শিবের নামে নামাঙ্কিত একটি স্থান, শিব মন্দির, শিবালয় পাবেন না, এটা হতে পারে না। শিব এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন, তাই শিবকে বাদ দিয়ে ভারতের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ হতে পারে না। ভারতীয় সংস্কৃতিকে বুঝতে গেলে শিবকে বুঝতেই হবে। এখন এর সঙ্গে পুরাণের অসংখ্য গল্প মিশে আছে, তার অসংখ্য নামও মিশে আছে। এত নাম একটা দেবতার কি করে হলো? সুতরাং আমাদের এগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। পুরাণের গল্প তো গল্পের মাধ্যমে মানুষকে বোঝানোর জন্য। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষেরা তত্ত্ব বোঝেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ তো গল্প শুনতে ভালোবাসেন, তাই গল্পের মাধ্যমেই তাদের বোঝানো হয়। পুরাণের প্রচেষ্টাগুলো তাই, ওর ভেতর থেকে সত্যটুকু খুঁজে বার করতে হয়। আমরা চেষ্টা করব কিছুটা, দেখা যাক কটা পর্ব ধরে কিভাবে কি বলা যায়। এখন প্রশ্ন হলো যে এই উমাপতি, গৌরীনাথ, শিব, শিব শঙ্কর, পশুপতি, ভোলানাথ, শ্মশানেশ্বর, নীলকণ্ঠ, এরা কারা? সবই কি সেই এক শিব, না আলাদা কেউ? না এসবের ব্যাপারটা অনেক অন্যরকম?
সব কিছু নিয়েই আমরা সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করব। আজ নয়, চলতে থাকবে এই আলোচনা। আজ আপনাদের এই শিবতত্ত্বের ওপর এক ভারতীয় মহিলার একটি ছোট্ট আলোচনা আপনাদের শোনাবো। সে আলোচনা আমি রেকর্ড করিনি, অন্য কেউ রেকর্ড করেছেন, কিন্তু সেটা প্রচারিত হয়েছে এবং মানুষের কাছে এই আলোচনাটা তুলে ধরা খুব দরকার বলেই আমি সেটা প্রকাশ করছি। জানি না অন্যায় অপরাধ কি হচ্ছে, বেআইনি কাজ করছি কিনা আমি তাও জানি না। আলোচনাটাকে শুনুন, খুব মূল্যবান আলোচনা, খুব কাজে লাগার মতো আলোচনা, তাই এটা প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় কে আলোচক অর্থাৎ সেই মহিলা, তার নাম আমি বলবো না, আজ বলছি না। আপনারা কাল সারাদিন আপনারা জানবেন, অনেকেই জানবেন, আবার অনেকে জানবেনও না। যারা জানেন, যারা চিনতে পারবেন, তারা এর নাম একটু আমাকে পাঠান, মন্তব্যে কমেন্টে লিখুন, দেখা যাক কতজন বুঝতে পারেন এবং নামটা প্রকাশ করতে পারেন। আর পরবর্তী ক্ষেত্রে মঙ্গলবারের আলোচনায় আমি তার নাম নিশ্চয়ই জানিয়ে দেব। এখন দেখুন দেখি এই সুন্দর আলোচনাটি আপনাদের কেমন লাগে। जी जितेंद्र, देखिए मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी तो नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली भारतीय संस्कृति की एक स्टूडेंट हूँ, एक छात्रा हूँ, तो बहुत सारी चीजें पढ़ने की समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब शिव के बारे में मैंने जानने की कोशिश करी तो पहली चीज तो मुझे ये पता चली कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। हम लोग अक्सर समझते हैं कि शिव कोई व्यक्ति है। शिव जो है वो कॉन्शियसनेस की जो बिल्कुल परम अवस्था होती है, चेतना की जो अवस्थाएं होती हैं, जागृत, निंद्रा और स्वप्न, उससे भी इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर जो स्टेज होती है चेतना की समाधि, तभी उनको जो है कहते हैं कि त्रिनेत्र खुलना, कि वो जब आप बिल्कुल हर चीज को एक अहम ब्रह्मास्मि वाली दृष्टि से देखते हैं। जब मुझे दिखता है कि जितेंद्र के अंदर भी मैं ही हूँ, हम उन तत्वों से बने हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, उन 5 एलिमेंट से हम बने हैं, उन्हीं 5 एलिमेंट से पूरा विश्व बना है। जब हम हर व्यक्ति के अंदर भगवान देखने लगते हैं, हर जीव के अंदर भगवान देखने लगते हैं, उस समाधि की, उस चेतना की एक्सट्रीम स्टेज को जब हम पहुंच जाते हैं, उसको कहा जाता है शिवत्व का प्राप्त होना। तभी मैं कहती हूँ कि शिव केवल पूजन का विषय नहीं है। डेफिनेटली पूजा तो होनी चाहिए, मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं हूँ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि किसी भी जगह जहाँ पर लोग मूर्ति पूजा करते हैं या जब आकृति की फॉर्म में हम जो भगवान को सम्मान देते हैं, वो भी एक यात्रा है। वो आकार से निराकार पे पहुंचने की एक यात्रा है। जैसे मेरा बच्चा छोटा है तो मैं उसको पहले बताती हूँ ए फॉर एप्पल, उसको दिखाती हूँ एप्पल लाल रंग का है, उसका ये शेप है, साइज है, फॉर्म है। जब वो समझ जाता है तब उसको बताती हूँ ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एंट भी होता है, ए फॉर एलिगेटर भी होता है। तो वो बड़ा ज्ञान प्राप्त करने से पहले जो स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के लिए मूर्ति पूजा मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि शिव केवल पूजन का विषय नहीं है, शिव दर्शन का विषय है। कुछ चीजें मैं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो क्वालिटीज, जो एट्रीब्यूट्स शिवत्व के अंदर होने चाहिए या शिव से जो हमें सीखने की जरूरत है, उनकी बीवी अन्नपूर्णा, उनके ससुर हिमालय, रत्नों की खान जिसको कहा जाता है, बेटे गणेश जी, दोस्त कुबेर, स्वयं महान ईश्वर, आदि योगी, लेकिन फिर भी अलग समाज से, एकदम अकेले, उनको किसी चीज का लालच नहीं है, डिटैचमेंट जो भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, वो हमें शिव से सीखने की जरूरत है। उनको वैद्यनाथ भी कहा जाता है, यानी कि चिकित्सा के गुरु। उनको नटराज भी कहा जाता है, यानी नृत्य के गुरु। उनको आदि योगी भी कहा जाता है, यानी कि योग के गुरु। इनफैक्ट हमें तो इस चीज से शायद ज्यादा भारतीय लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि श्री राम के भी गुरु हैं शिव, क्योंकि रामेश्वरम में श्री राम ने खुद शिवलिंग स्थापित किया था, जो आई थिंक जिन 12 ज्योतिर्लिंगों का मैंने जिक्र किया, उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग है। तो श्री राम जिनको अपना गुरु मानते हो, वो कितना बड़ा दर्शन होगा, ये हमें समझने की जरूरत है। वो ओंकार भी हैं, जो एक ओंकार, जो एक कहते हैं कि यूनिवर्सल वाइब्रेशनल साउंड, क्रिएशन जिसको कहा जाता है, तो वो संहार भी हैं, वो क्रिएशन भी हैं, वो डिस्ट्रक्शन भी हैं। उनके जो गण कहा जाता है, जो आसपास के लोग हैं, वो भूत प्रेत पिशाच, यानी समाज से जो त्याज्य लोग हैं, जिनको कोई अपने आसपास भी नहीं रखना चाहता है, उनको वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो ये भी भारतीय संस्कृति का एक दर्शन है कि हमारी संस्कृति में किसी को त्याज्य या किसी को अवर्ण
या तुम छोटी जाति के हो, तुम पास मत बैठो, तुम्हें छुआ नहीं जाएगा, ये भारतीय संस्कृति का दर्शन नहीं है। तो ये भी हमें शिवत्व सिखाता है। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है कि उन्होंने पार्वती जी को अपने अंदर समाहित कर लिया था। तो वो जो मेल फीमेल एनर्जी से पूरा यूनिवर्स बना है, जिसको यिन यांग भी कहते हैं बहुत से कल्चर्स में, या बहुत अलग अलग शब्द उनको दिए गए हैं, वो अर्धनारेश्वर का भी प्रिंसिपल हमें शिव सिखाते हैं। नारी अपमान हमारे देश में नहीं हो सकता है। नारी अपमान पे हमारे देश में महाभारत रामायण जैसे युद्ध हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमें दर्शन, जितने भी हमारे इतिहास हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे भगवान हैं, या हमें जो भी पूजा पद्धतियां बताई जाती हैं, वो एक प्रोसेस है हमें उस महान दर्शन को सिंपल तरह से समझाने के लिए, उन एट्रीब्यूट्स को, उन क्वालिटीज को हम अपने अंदर आत्मसात कैसे करें, ये सिखाने के लिए ये हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन है। शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है कि भोले हैं, कि बहुत लोगों की ये मान्यता है कि आप शिव से जो भी मांगते हैं वो आपको मिलता है, बिकॉज वो भोले हैं। आप देखिए ना कि धरती के नीचे दबा दिया इतने सालों तक, कुछ नहीं, क्योंकि भोले हैं। लेकिन अगर भोले हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो सर्वनाश भी करते हैं। भोले हैं, एक हद तक भोले हैं, एक लिमिट तक, एक सीमा तक भोले हैं। नीलकंठ हैं, समुद्र मंथन से जो जहर निकला था वो उनके अपने गर्दन के अंदर है। नीलकंठ हैं, लेकिन तांडव भी करते हैं। तो उस दर्शन को प्लीज समझिए, महाभारत के लेसन को समझिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को समझिए, और भारतीय दर्शन को समझते हुए संप्रदाय से ऊपर उठकर प्लीज अध्यात्म को समझते हुए समस्या का समाधान मिलकर ढूंढिए। ये राजनीति का विषय नहीं है जितेंद्र। मैं ये बार बार दोहराना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है जो हम सोचते हैं कि कोई राजनीति ही हमें इन समस्याओं से बाहर निकाल लेगी। भारत में समाज सत्ता राज सत्ता से बड़ी चीज है। ये भारतीय समाज की ताकत है, ये भारतीय समाज की हिम्मत है, और ये भारतीय समाज की एकता है जो हमें इन समस्याओं से निकाल सकती है। तो कृपया इस चीज में हम लोग भारतवासी बन के समस्या को देखें और संवाद करके समाधान की ओर बढ़ें। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी इस बाइट को समाप्त करना चाहूंगी। শুনলেন তো বন্ধু, শিব তত্ত্ব সম্পর্কে, শিবত্ব সম্পর্কে, শিব সম্পর্কে কি গভীর আলোচনাই না ইনি করলেন। আগের কথা টেনেই বলছি, আমি এই আলোচনা কে করলেন তার নামটি মঙ্গলবার বলবোক্ষণ। আপনারা ভাবুন, চিন্তা করুন এবং আপনারা জানান চিনতে পেরেছেন কি না। সকলে ভালো থাকুন, সকলের মঙ্গল চাইছি, সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকলকে নমস্কার জানিয়ে আজকের মতো আলোচনা শেষ করলাম।